Hey guys, welcome back to the video. It's not a traveling video. As you can see, I'm in my room right now, and it's a sort of informational video. Most of you guys were saying that please make a video on how did you came to Germany, did you hire any consultants or not. So here I am to let you know what's my journey, how did I came, what did I do. So I made a list on the same thing. So starting with my planning and my research started back in 2024 after August, मे बी जुलाई एंड ऑफ जुलाई और अगस्त. ठीक है. उसके बाद हाउ डिड आई स्टार्ट माई रिसर्च. नंबर वन थिंग, I used n number of websites. What n is, I used different websites, like I used ChatGPT to do my research. I used many other websites which were quoting that there are certain best colleges of Germany and all. So I served various websites and got some information out of it, noted them down, and after that, noting them, then I got to remember that this page might get lost, so I started to do it in Excel, which I would highly recommend you guys as well to use Excel, because it is one of the best tool that you can use for anything, right? So chat gpt, मैं आपको पहला जवाब देता हूँ. chat gpt, how did I start my surfing on chat gpt? So I gave it a prompt like, give me top 20 public universities of Germany that are offering courses in masters. आपका course name, like mine was computer science and data science, in English, whose semester ticket or semester contribution is not more than 300 euros and comes in the category of top global colleges. And I clicked enter. It served various websites. I do not have a premium subscription, to let you know. मैंने सब कुछ free वाले subscription से किया. एंड उसमें उसने बहुत सारी मुझे लिस्ट दी. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई gave him another prompt, that bought another prompt that make sure whatever you are doing, do it in Excel and give me a download link of the same. So it did all those things in the backend and gave me an Excel list which I cross verify, which you have to cross verify, right? तो वो लिस्ट आई, उसमें मैंने उसको कहा कि मुझे कॉलेज का नाम दो, कॉलेज की फीस दो, कॉलेज की लोकेशन दो, कॉलेज की रैंकिंग दो, उस स्टेट में उस कॉलेज की रैंकिंग दो, उस देश में उस कॉलेज की रैंकिंग दो, बिकॉज आई वॉज सर्चिंग फॉर ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड ऑल. सो देयर वर मेनी यूरोपियन कंट्रीज ऑन द सेम टाइम. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन हियर इज, मैंने उसको कहा कि उसकी जो, सॉरी भूल गया था मैं बीच में, इसमें नहीं लिखा ना मैंने, ऑल ऑफ अ सडन याद आती चीज़ें. मैंने उसको कहा कि आप मुझे जो कॉलेजेस की लिस्ट दे रहे हैं उसमें द एप्लीकेशन पोर्टल शुड बी फ्री, इट शुड नॉट चार्ज मी एनी सिंगल पेनी. उसमें मैंने ये इसलिए लिखा, आपको इसके पीछे का रीज़न दिखाता हूँ, बिकॉज आई वॉज न्यू टू दिस प्रोसेस एंड सो आर यू. ठीक है. यू नेवर नो वॉट मे गो वेल, वॉट वेंट रॉन्ग. ठीक है. यू नेवर नो अबाउट दिस. तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपका एक एप्लीकेशन वेस्ट होती है एंड इफ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ना, यू वॉन्ट बी दैट मच हर्टेड. होगा थोड़ा सा दुख होगा कि यू हैव लॉस्ट वन अपॉर्चुनिटी, बट नॉट अ बिग डील. देयर आर एन नंबर ऑफ कॉलेजेस एज वेल. Post that, what you have to do, it will give you a list. You search all those things by yourself. But yes, I would like to mention one thing: do the research thoroughly, bro or sis. Do the research thoroughly, because अगर आप research thoroughly नहीं करेंगे, you will, all those things will backfire you at one or the other point. Whether it may not backfire at that particular point, but eventually वो होगा, and which you will regret later, and you won't be able to tell it to others. ठीक है. उसके बाद आपको रिसर्च, एक तो चैट जीपीटी बता दिया. सेकेंड तरीका, व्हाट यू कैन डू इज गो टू .de. ये इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है. .de इज डॉइचलैंड, इनका डोमेन नेम होता है. तो .de पे जाएं आप वहाँ पे भी कॉलेज सर्च कर सकते हैं, कॉलेजेस की रैंकिंग्स देख सकते हैं, उनके लिंक्स होंगे, आप गो थ्रू करें. एंड मेक श्योर, वन इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर जो चैट जीपीटी ने आपको लिस्ट दिया आप उसको क्रॉस वेरीफाई करें, बिकॉज आई रिग्रेट वन ऑफ द बिगेस्ट mistakes that I did by trusting ChatGPT. मैं आपको मेरा पर्सनल बताता हूँ. यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन द ग्लोब, उसकी उस टाइम पर रैंकिंग शायद 2024 में 81 रैंकिंग थी पूरी दुनिया में टॉप कॉलेजेस में. आई मिस्ड दैट कॉलेज. इट वॉज वन ऑफ बेस्ट कॉलेजेस इन माई बकेट लिस्ट टू अप्लाई. उसका भी शायद एप्लीकेशन फ्री था. What I did was I trusted ChatGPT and ChatGPT gave me a deadline to apply on this particular application जो मुझे मेरी उस Excel में थी कि what's the deadline of the colleges. मैंने उस पर इतना ट्रस्ट किया, वो डेडलाइन मेरी मिस हो गई because I trusted GPT's information. और
जब मैंने अप्लाई किया एग्जैक्टली मैंने 10 दिन बाद जब उसको खोला, आई थॉट कि अभी बहुत टाइम में अप्लाई करूँगा. प्लीज़ डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. आई रिपीट, वॉट एवर यू डू इट देन एंड देयर ओनली. आप उसको छोड़ेंगे, आपका यू नेवर नो व्हेन आर यू गोइंग टू कम बैक, और यू माइट फॉरगेट दैट थिंग एज वेल. तो जब मैंने उस डेडलाइन को देखा, so I was like, I was shocked. It was one of the best universities that I wanted to apply, but here I am. I wasn't able to apply, but you know they say na, God has some other plans for you. तो वो मिस हो गई. मैंने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं, इट वॉज नॉट इन माई लक, मेरे नसीब में नहीं थी. पोस्ट दैट अब मैं आपको बताता हूँ ये जब मेरा सिलसिला, ये जो मेरी जर्नी जुलाई अगस्त में शुरू हुई थी 2024 में. तो इस दौरान अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आइल्स एपीएस कब अप्लाई किया, मैं आऊँगा उस पर. अब बात करते हैं एपीएस की. बिफोर अप्लाइंग टू आइल्स आई अप्लाइड फॉर एपीएस बिकॉज अगर आप पूरे नेट पे भी सर्फ करेंगे तो दे से the minimum amount of days you'll get your APS certificate is like 2 months or something like that. And the cost of APS that I paid was 18,000 rupees. And आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, luckily my luck one was my side only. I got my APS certificate. You'll be shocked to know this. I got my APS certificate within 2 weeks or maybe less than that. I don't know how, because most of the people are getting it like 2 months or 1.5 months. But luckily, I got my APS certificate in 14 days or maybe less than that, because I had every single document that they needed. And as soon as I applied and sent them documents online, I made sure that I'm sending those documents via hard copy as well. And remember one thing, they won't acknowledge you that whether they have received the documents or not. Number second, right? So APS की journey थी, and guys, to be on a safer side, do not consider my case because I was lucky enough to get it. But who knows, you are and you are not. ठीक है. What I would suggest you guys to do is apply as soon as possible, because आप उसको एक 2 months की deadline लेके चलिए. I also thought the same, but I got in 2 weeks. आप मेरा केस छोड़ दीजिए, देर आर वेरी फ्यू केसेस लाइक माइन, बिकॉज वॉट एवर. उन्होंने मुझसे एक काउंटर डॉक्यूमेंट और मांगा था. उन्होंने बोला कि आप मुझे अपनी 8th सेमेस्टर की मार्कशीट दे दीजिए. दैट आई डेंट हैव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बट वो मेरे कॉलेज में थी. तो जैसे ही उनका फोन आया, इमीडिएटली वेंट टू कॉलेज, टुक माई मार्कशीट. उन्होंने मुझे इन द मीन टाइम दे कॉल्ड मी ट्वाइस. यस, एपीएस सेंटर से 2 बार कॉल आया कि, तो मेरा ये हुआ था. इसके बाद हम जाते हैं आइल्स पे. सो एपीएस आ गया, अब आता है आइल्स की बात. I applied IELTS on 22nd of September. ठीक है. एंड विद इन 1 week मेरे को मतलब स्लॉट मैंने चूज़ किया. तो आइल्स का भी थोड़ा सा मतलब यू गाइज शुड प्रिपेयर बट नॉट दैट मच, बिकॉज ये एक जस्ट इंग्लिश का पेपर है. एंड इफ यू विल फोकस मोर ऑन इट ना, यू विल बी नर्वस एंड यू विल बी स्केयर्ड डे बाई डे. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. इट्स जस्ट लाइक प्रिपेयर फॉर 1 week, गो फॉर द पेपर. अगर आप उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, बार बार करेंगे, वो एक नर्वसनेस आएगी आप में, एक टेंशन क्रिएट होगी. आप लोग बोलेंगे इंग्लिश से हम कभी इतना डरे नहीं जितना इस पेपर से डर रहे हैं. और इस पेपर के लिए आई गेस आई पेड 17,150 और समथिंग लाइक 17,500. आई एम नॉट क्वाइट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द प्राइस, बट येस दिस इज व्हाट आई पेड. एंड मेरा सेंटर जयपुर था, बिकॉज आई एम अ नेटिव ऑफ जयपुर. और मेरा था होटल रामादा में. 1 day वॉज माई स्पीकिंग and another day was वो 3 of combination, listening, writing, and what was the other one, whatever यार भूल गया मैं. तो उसके बाद रिजल्ट की बात करता हूँ. मैंने पेन एंड पेपर लिया था. सो विद इन 10 to 12 वर्किंग डेज माई रिजल्ट गॉट आउट. ठीक है. एंड अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आप कहते हैं ऑनलाइन वाला, I would not recommend you guys to go for online, because I have read somewhere that now visa embassies are not accepting online IELTS or something like that. I'm not quite sure of it, but I have read it somewhere. You guys should cross verify it. ठीक है. And आप पेन एंड पेपर दीजिए, बिकॉज उससे you can easily judge things in a quicker way. Although वो 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है ऑनलाइन का, but I won't suggest that until unless आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज हो, जिससे आप ऐसे राइट कर सकें, क्योंकि ऐसे के लिए आपको शायद 1 घंटा मिलता है, विद इन विच यू हैव टू डू कवर बोथ दीज सेक्शंस. लिसनिंग, याद है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 3 सेक्शन थे. सॉरी. एंड अब आ जाते हैं, अब ये जो मेरी प्रोसेस चल रही थी जुलाई से अगस्त की, ये तो मैं सर्टिफिकेट से ये सब अप्लाई कर रहा था. बट इन द मीन टाइम आई वॉज अप्लाइंग टू कॉलेजेस एज वेल, क्योंकि वो बहुत मेजर था. आई वॉज देयर वर लॉट ऑफ कॉलेजेस दैट आई वॉज टारगेटिंग टू गेट इन. बट मेरे जैसे आप लोग हैं, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, मुझे आई डेंट हैव दैट मच क्लियर गाइडेंस, सो आई टू मेक सर्टेन डिसीजंस.
मैंने बहुत रिसोर्सेज लिए, कुछ भैया हैं मेरे जर्मनी में, हर्ष भैया, उनकी हेल्प ली मैंने, थैंक्स मेट। तो बहुत सारी चीज़ों के थ्रू मैं जा रहा था एंड मैंने अप्लाई करता रहा कॉलेजेस में। हर कॉलेज फ्री नहीं होगा टू अप्लाई टू, ठीक है। एंड उसमें जब मैं कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा था, आई हैड मेनी हर्डल्स। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, समथिंग लाइक दैट, ये आपको हर पोर्टल पे मिलेगा, विच इज़ नथिंग बट योर 12th क्लास मार्कशीट। तो ऐसे हैवी टर्म्स आते थे जिसमें मैं चैट जीपीटी, को पायलट, बर्ड यूज़ करता था। एआई का मैंने बहुत यूज़ किया, बहुत। थैंक्स एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द एआई टूल्स आउट देयर। बहुत यूज़ किया है एआई का, एंड आई वुड ऑल्सो हाईली रिकमेंड यू गाइज टू यूज़ एआई, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग थ्रू कंसल्टेंट्स, नीदर डिड आई। I did not hire any consultant, although I had many things in my mind, which was saying, and my mind was also pressurizing me to go with consultant, you will skip all those processes. But I said no, because the minimum amount you are going to pay to a consultant is 50,000 INR, which is a lot of money. And I belong to a middle class family, so I can understand that 50,000 एक बहुत बड़ी amount है, just to give it to a consultant so that he can write your SOP, write your CV, apply to a college or something like that, which I didn't thought was worth it to give. So मैंने खुद ही वो मेहनत करी, and many variations of everything, then apply, rejection. And जब आप कॉलेज में अप्लाई करें, मेक श्योर you are coming to Germany, and it requires a lot of patience. It's not something like that कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, within 2 days you'll get an acceptance letter. No bro, आप अप्लाई करें पब्लिक यूनिवर्सिटी में, at least उनका time frame to respond you is 1.5 to 3 months. It could go up to more than 3. मैं आपको उसका भी एक किस्सा बताऊंगा। तो at least 1.5 month you have to keep that in mind, right? अब आते हैं हमारे कौन सा सेक्शन आ गया, ठीक है। अब my personal experience, I applied to almost 20-21 universities, and on top of that I applied to many scholarships, which unfortunately I wasn't able to secure one, ठीक है। तो ये था मेरा जो 20 कॉलेजेस में मैंने अप्लाई किया था। टू लेट यू नो गाइज वन मोर थिंग, जो मैंने 20 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। आई वाज टारगेटिंग डेटा साइंस, ठीक है। सो व्हेन आई वाज टारगेटिंग माय डेटा साइंस, I applied to many data science universities, and most of them were paid. So I had to pay because I don't have any choice, because data science was one of my interest areas. मैंने अप्लाई किया, एंड यूल बी सरप्राइज दैट मैंने यूनी असिस्ट के थ्रू 17,000 समथिंग रुपीज़ की मैंने एप्लीकेशंस फाइल करी थी। देयर वर 5 एप्लीकेशंस फॉर 5 डिफरेंट कॉलेजेस। 4 colleges I applied for data science. And what's the surprising part? Here comes the surprising part. All of those 4 colleges rejected my letter, and those colleges included the name of University of Dortmund and a few more, and my Paderborn University as well. So 2 of them are these only. And yes, I guess Technical University of Berlin, TUB भी उसमें एक थी, and 2 और थी, as soon as I remember their name I'll let you know. मैंने उनमें भी अप्लाई किया, and all those 4 rejected on one simple ground, that you are not meeting the ECTS criteria. Let me tell you, मेरे ECTS कम नहीं था, I was getting 238 ECTS मैंने जब कन्वर्ट किया। ECTS वाला भी मैंने खुद ही किया, उसका मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वेयर टू वॉच वीडियोस, हाउ टू कन्वर्ट योर ECTS एंड ऑल। तो मैंने ECTS भी अप्लाई किया था, मतलब कन्वर्जन करा था, तो 238 वाज मोर देन इनफ टू सिक्योर एडमिट इन कॉलेज। बट जब मैंने उनको मेरी ट्रांसक्रिप्ट भेजी, मार्कशीट्स भेजी, उसमें दे फाउंड दैट you have not studied many subjects that we teach in our bachelors, and all of those 4 colleges gave the same reason, that insufficient ECTS and insufficient prior knowledge and stuff like that. And आप ये समझ लीजिए 15,000 की एप्लीकेशंस मेरी वेस्ट थी सीधी। और TU बर्लिन, मैं आपको कहूँगा, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू नॉट टू अप्लाई, अदरवाइज इट्स योर मनी इफ यू वांट टू अप्लाई, बिकॉज दे नेवर गिव रिस्पॉन्स ऑन टाइम, नेवर। मैं आपको TU बर्लिन का एग्जाम्पल देता हूँ। When I landed in Frankfurt on 26th of March, when I was waiting for my intercity express, I've got a mail, and I usually check my mails back and forth frequently. And when I got my mail, it said, we are sorry to say we are not giving you an acceptance letter because of so and so reason. जब मैं जर्मनी पहुंच गया था तब उन्होंने रिजेक्शन भेजा। सोचिए अगर मैं उनका वेट करता तो कितना टाइम हो जाता। यू शुड नॉट वेट फॉर बिग यूनिवर्सिटीज, बिग जाइंट्स for you to apply, because it's really competitive, it's hard to get in.
and I would rather suggest you to go for other universities like Heidelberg University, like LMU. I applied to LMU as well. LMU में मेरा rejection किस वजह से है? For the same reason, less ECTS and less knowledge of prior subjects and blah blah blah. LMU was also in one of my bucket list.